شادی کے سلسلے میں اپنے کام سے 2 ماہ کی چھٹی لے کر اپنے ملک پہنچا تھا۔ میں کافی عرصے سے دبئی میں نوکری کرتا تھا اور وہیں رہتا تھا، مگر اب میری ماں اور بہنوں کو میری شادی کی فکر ستانے لگی تھی۔ اسی وجہ سے وہ لوگ میرے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے یہ ذمہ داری مکمل طور پر اپنی ماں کو سونپ رکھی تھی، کیونکہ میری اپنی کوئی پسند نہیں تھی۔ اسی وجہ سے جب میری اماں نے مجھ سے میری پسند کے بارے میں پوچھا تو میں نے سب کچھ انہیں پر چھوڑ دیا تھا۔ میں بہت کم عمری میں ہی اپنا ملک چھوڑ کر کمانے کے لیے دبئی آ گیا تھا اور پھر یہیں رہ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ 1-2 سال وہاں لگا کر میں اتنا جمع کر لوں گا کہ اپنے ملک میں واپس آ کر کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکوں۔ وہاں میرے پاس 2 سال میں اتنی رقم تو ہو گئی تھی کہ میں واپس جا سکتا تھا اور اپنا کام شروع کر سکتا تھا، مگر جب میں نے اماں سے اپنے واپس آنے کی بات کی تو انہوں نے مجھے صاف انکار کر دیا اور مجھ سے کہنے لگی کہ جو رقم میں نے کاروبار کے لیے جمع کر رکھی ہے وہ انہیں بھیج دوں، کیونکہ انہی دنوں میری بڑی بہن کا رشتہ طے ہو گیا تھا اور اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں واپس آ کر کاروبار کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کاروبار سے جو منافع ملے گا میں اس سے اپنی بہن کی شادی کر دوں گا، مگر مجھے ایسا لگا کہ اماں جیسے چاہتی ہی نہ ہوں کہ میں واپس آؤں۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ کاروبار کرنے میں تو بہت عرصہ لگے گا، تم واپس آؤ گے، کاروبار کو جماؤ گے، ان سب میں تمہاری بہن کی عمر ہی نکل جائے گی، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ جو پیسے تم نے اپنے کاروبار کے لیے جمع کیے ہیں وہ مجھے بھیج دو، میں اسے تمہاری بہن کی شادی کر دوں گی۔ یہ سب باتیں سن کر میرا دل بے انتہا خراب ہوا، کیونکہ 2 سال سے اپنے گھر سے دور ایک غیر ملک میں رہ رہا تھا، جہاں طبیعت خراب ہو جائے تو آپ کو پوچھنے والا تک کوئی نہیں ہوتا۔ جب اماں نے مجھ پر زیادہ زور دیا تو میں نے ساری رقم انہیں بھیج دی اور پھر سے کمانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ جو رقم میں نے بھیجی اسی سے میری بہن کی شادی بہت دھوم دھام سے ہو سکتی تھی، مگر پھر بھی وہ رقم میرے گھر والوں کو بہت کم لگ رہی تھی۔ میں اپنی بہن کی شادی میں شرکت کرنا چاہتا تھا، مگر میرے گھر والے یہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ میں واپس آؤں، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ اگر میں ایک بار واپس آ گیا تو میں دوبارہ سے واپس نہیں جا سکوں گا۔ اسی لیے جب میں نے اپنے آنے کا بتایا تو سب یکدم ہی خاموش ہو گئے، کیونکہ اب ان لوگوں کو مجھ سے زیادہ میری کمائی کی ضرورت تھی۔ اسی وجہ سے وہ لوگ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ میں واپس آؤں۔ میں بھی ان سب لوگوں کے رویے سے یہ بات بخوبی سمجھ گیا تھا، اس لیے اپنا دل مار کر وہیں بیٹھا رہا۔ میری بڑی بہن کی شادی ہو گئی اور وہ اپنے گھر رخصت ہو گئی۔ اس دن پہلی بار مجھے اپنے اکیلے پن کا احساس ہوا اور سمجھ آیا کہ یہ دنیا صرف پیسے کی پجاری ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو سب آپ کے اپنے ہیں، ورنہ اپنے بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ وہاں سب لوگ میری بہن کی شادی کی خوشیوں میں مصروف تھے اور میرا فون اٹھانا تک کسی کو یاد نہیں رہا تھا۔ اسی گہما گہمی میں ہر کوئی مجھے یکسر فراموش کر چکا تھا۔ وہاں اگر کسی چیز کی اہمیت تھی تو وہ میرے پیسے کی اہمیت تھی اور باقی ہر چیز بے ضرر تھی۔ اس دن دیار مجھے کسی قید سے کم نہیں لگا تھا، جس میں قید ہو کر میرے سارے اپنے مجھ سے بچھڑ چکے تھے۔ ایک بات پھر سے مجھے یہاں کمانے کے لیے انتھک محنت اور جد و جہد کرنی تھی۔ ان 2 سالوں میں جس طرح سے میں نے دن رات ایک کر کے پیسے کمائے تھے، وہ سارے پیسے میرے گھر والوں نے بڑی بہن کی شادی کی نظر کر دیے تھے۔ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، مجھے نئے سرے سے دوبارہ سے پیسے جوڑنے تھے۔ 2 سال بھی میں نے اسی انتظار میں گزارے تھے کہ بس کچھ وقت اور محنت کر لوں، اس کے بعد میں اپنے گھر کو لوٹ جاؤں گا۔ مگر اب گھر واپس لوٹ کر جانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں وہیں آ کھڑا ہوا تھا جہاں سے میں نے چلنا شروع کیا تھا۔ اس رات میں اپنے بستر میں لیٹا آنسو صاف کرتا رہا تھا۔ میرے گھر والوں کو خبر تک نہیں تھی کہ یہاں مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ وہاں سب لوگ اپنی خوشیاں منانے میں مگن تھے، مجھے مکمل طور پر بھول ہی گئے تھے۔
मैंने बहन की शादी में शिरकत करने की बात की तो मेरे घर वालों ने मुझे साफ मना कर दिया कि यहाँ आकर पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं। और फिर दूसरे दिन अम्मा का फ़ोन आ गया कि जो तुम्हारे पास टिकट के पैसे हैं वो हमें भेज दो, बहन की सास के लिए सोने का जेवर बनवाना है, उसके लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। और मैंने भारी दिल के साथ वो पैसे भी अपने घर वालों को भेज दिए और ख़ुद मुकम्मल तौर पर खाली हाथ हो गया। अब नए सिरे से मुझे मेहनत करना और पैसे जमा करना थे जो अब मैं वापस जा सकूं। इसलिए मैंने वापस जाने का ख्याल अपने दिल से निकाला और दोबारा से मेहनत करने लगा। इतने 2 साल 7 माह तक मैं मज़ीद मेहनत करता रहा और एक एक पाई जमा करता रहा था, यहाँ तक कि मैंने अपना पेट काट कर वो पैसे जमा किए थे। मैं सुबह नाश्ता करने के बाद बस फिर रात को ही खाना खाता था और जो खाना मैं ख़रीदा करता था उसकी भी कोशिश करता कि ये 2 दिन तक ज़रूर चल जाए। इसीलिए आधी भूख रखकर मैं खाना खाता था। बहुत ही मुश्किल से मैंने ये अरसा गुजारा था। कभी कभी हालात से तंग आ जाता तो रोकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता, क्योंकि मुझे देखने वाला और मेरे रोने पर हंसने वाला और कोई भी नहीं था। आखिरकार मैं दोबारा से इतने पैसे जमा करने में कामयाब हो गया कि वापस अपने मुल्क जा सकूं और वहाँ एक छोटा सा कारोबार शुरू कर सकूं। मगर शायद किस्मत को इस बार भी मेरा जाना मंजूर नहीं था। उन्हीं दिनों अम्मा का फ़ोन आया। उस वक्त मैं काम में मसरूफ़ था। इसी वजह से मैंने अम्मा से कहा कि मैं रात को घर जाकर बात करूँगा। अभी मैं अपने फ्लैट में दाखिल हुआ था, अम्मा का दोबारा से फ़ोन आने लगा। मैंने अम्मा को सलाम किया, उनका हाल चाल पूछा तो अम्मा ने जैसे मेरी कोई बात ही नहीं सुनी। अम्मा की आवाज़ बहुत परेशान लग रही थी। अम्मा कहने लगी कि मेरी बड़ी बहन जिसकी शादी हुई थी उसके शौहर को एक बड़ी रकम की ज़रूरत है और वो हम लोगों से पैसे का मुतालबा कर रहा है, और अगर हम लोगों ने वो पैसे नहीं दिए तो मेरी बहन को तलाक दे देगा। मेरी बड़ी बहन की शादी को महज 2.5 साल का अरसा ही गुजरा था, और अगर हम लोगों ने उसे उसके कारोबार में लगाने के लिए पैसे नहीं दिए तो उसके दामन पर तलाक का दाग लग जाता और साथ ही उसकी बच्ची भी दरबदर हो जाती। अम्मा ने मुझसे कहा कि मैं जल्द ही पैसों का इंतज़ाम करके उन्हें भेज दूं। अम्मा की ये बात सुनकर मैं कितनी ही देर तक सन्नाटे में बैठा रहा और फिर मेरी कमज़ोर सी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मैं अम्मा से कह रहा था कि मैं कहाँ से इतना पैसों का बंदोबस्त करूँगा। अब मैं वापस आना चाहता हूँ और अपना कारोबार शुरू करना चाहता हूँ। मगर मेरी बात सुनकर अम्मा हत्थे से उखड़ गई और मुझे बेनक़्त सुनाने लगी। उस वक्त अम्मा को सिर्फ अपनी बेटी का घर बचाना मकसद था। उन्हें इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि उनके बेटे पर क्या गुजर रही है। मैंने अम्मा को साफ इनकार कर दिया कि मैं अपनी बहन के शौहर को कोई पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरी दिन रात की खून पसीने की कमाई थी। मैं ऐसे ही किसी को कैसे दे सकता था। ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया, क्योंकि अब मैं मज़ीद कोई भी बात नहीं करना चाहता था। मैं वापस अपने मुल्क जाना चाहता था। 1 हफ्ता तो सुकून से गुजर गया। फिर 1 हफ्ते बाद दोबारा से अम्मा का फ़ोन आया। इस बार वो फ़ोन पर बुरी तरह से रो रही थी। मेरी बड़ी बहन के शौहर को जब पैसे नहीं मिले और उसे साफ इनकार सुनने को मिला तो उन्होंने मेरी बड़ी बहन को उसकी बेटी समेत हमारे घर भेज दिया और वाज़ह लफ्ज़ों में कह दिया कि वो आज दोनों को जब ही वापस लेने आएंगे जब हम पैसों का बंदोबस्त करके उन्हें देंगे। अम्मा ने इस बार मुझसे कहा कि मेरी बेटी का घर तेरी वजह से बर्बाद हो जाएगा। वो मुझसे कह रही थी कि अगर तूने पैसे ना भेजे तो मैं कभी भी ज़िंदगी में तेरी शक्ल नहीं देखूंगी। अम्मा की ये बात सुनकर मैं बेबस हो गया और अब उन्हें पैसे भेजने पर मजबूर हो गया, क्योंकि अब मेरी बहन का घर तबाह होने के धाने पर खड़ा था। मैं पैसे भेजकर अपनी बहन का घर बसा सकता था, और अगर मैं पैसे नहीं भेजता तो मेरी बहन का घर बर्बाद हो जाता और फिर कभी भी मेरे घर वाले मुझे माफ़ ना करते। इसी वजह से मैंने अपने दिल पर भारी सिल रखते हुए पैसे भेजने की हामी भर ली और सारे पैसे जमा किए गए उन्हें भेज दिए।
और अब एक बार फिर से मैं खाली हाथ हो गया। मेरा ज़हनी दबाव शदीद हो गया था। मैं जितना वापस जाने की कोशिश करता उतना ही मेरे घर वाले मुझे ही मुर्द इल्ज़ाम ठहराते। इसी वजह से मैंने अपनी बहन का घर बचाने के लिए जो इतने अरसे से पैसे जमा किए थे वो सब अपने घर वालों को भेज दिए और ख़ुद एक बार फिर से खाली हाथ रह गया। मेरा दिल इन सब से बुरी तरह से ख़राब हो गया था। अब जाने मुझे और कितना ही अरसा तक यहाँ रहकर नौकरी करनी थी और एक बार फिर से वापस जाने के लिए पैसे जमा करने थे। मेरे घर वालों में किसी को भी मेरे दर्द का एहसास नहीं था। मैंने तो अब बिल्कुल ही वापस जाने की आस छोड़ दी थी, क्योंकि मैं जान चुका था मेरे घर में किसी को भी मेरी ज़रूरत नहीं है, बल्कि सबको मेरे पैसे से मतलब है। वरना हर बार मेरे वापस घर आने में वो लोग यूँ रखना ना डालते। मेरी बड़ी बहन के शौहर को जब पैसे मिल गए तो वो वापस आकर मेरी बहन और अपनी बेटी को अपने साथ ले गया और यहाँ मैं एक बार फिर से तन्हा रह गया था। मैंने अब वापस जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया, क्योंकि मैं जान गया था कि मेरा वापस जाना इतना आसान नहीं है। अगले कई बरसों तक मैं दुबई में कमाता रहा और घर वालों को भेजता रहा, मगर इस बार मैंने अपने खुद के लिए भी बचा कर रखा था, क्योंकि मैं ये बात भी जान गया था कि मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं होगा। कई साल मैं दुबई में लगा चुका था। वापस आने का ख्याल मैंने अपने जहन से निकाल दिया था। मैं बस यहाँ रहकर दिन रात मेहनत मजदूरी कर रहा था और पैसे अपने घर वालों को भेज रहा था। मेरी तीनों बहनों की शादियाँ हो चुकी थी और वो अपने घर में खुशो खुरम रह रही थी। मेरी तीनों बहनों की शादियाँ मेरे ही पैसे से हुई थी, जो मैं दुबई से कमाकर उन लोगों को भेजा करता था। मगर किसी ने भी झूठे मुंह मुझे इस बात की दावत तक ना दी थी कि मैं यहाँ कर उन लोगों की शादियों में शिरकत कर सकूं, क्योंकि सबको यही डर था कि अगर मैं यहाँ आ गया और पीछे से मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा। इसीलिए जब भी मैं वापस आने की बात करता तो ये लोग मुझे साफ इनकार कर दिया करते थे। अम्मा तो मुझसे कहती थी कि तुम्हें वापस आने की और शादियों में शिरकत करने की क्या ज़रूरत है, हम तुम्हें तस्वीरें भेज देंगे। और मैं अपना दिल महसूस कर रह जाया करता था। किसी को भी यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं थी, सबको बस मेरे पैसे की ज़रूरत थी। मेरी तीनों बहनों की शादी हो गई, मगर मैं तीनों में से किसी की भी शादी में शिरकत नहीं कर सका। उसके बाद मेरे छोटे भाई की भी शादी हो गई। इस बार मैं वाकई आना चाहता था, इसलिए मैंने घर बोला कि मैं शादी में शिरकत के लिए चंद दिन के लिए घर आ रहा हूँ। तो उसी शाम सबके फ़ोन आने लगे और सभी मुझे मना करने लगे और इस बात से डराने लगे कि अगर तुम यहाँ आ गए और पीछे से तुम्हारी नौकरी चली गई तो क्या होगा, इसीलिए तुम्हारा वहीं रहना बेहतर है। मेरा एक ही भाई था, उसकी शादी का मुझे बहुत अरमान था। उसकी शादी की सारी शॉपिंग मैंने दुबई से करके भेजी थी। हर रोज़ रात को घर वालों के फ़ोन आ जाया करते थे और मुझे लंबी लंबी लिस्टें थमा दी जाती थी। उन लोगों को इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि ये सब मैं कहाँ से लेकर आता हूँ। आखिरकार भाई की भी शादी हो गई। वहाँ सब लोग शादी में शिरकत कर रहे थे और मैं उन सब से मीलों दूर बैठा अपने कमरे में सबको याद करने में मसरूफ़ था। उस वक्त मेरे दुखी दिल का हाल कोई भी नहीं जान सकता था। सभी अपनी अपनी खुशियों में मगन थे। इन सब में किसी को भी मेरा ख्याल नहीं था। बार बार मेरी आंखों में आंसू आ जाया करते थे, जिन्हें मैं पलकें झपक के अपने अंदर उतार लिया करता। मुझे दुबई में रहते काफ़ी साल गुजर चुके थे। जब मैंने दुबई में कदम रखा था उस वक्त मैं एक लापरवाह सा नौउम्र लड़का था। उस वक्त मेरे जहन में बस ये ख्याल सवार था कि मैं यहाँ इतना कमा लूँ कि वापस जाकर अपना एक छोटा मोटा सा कारोबार शुरू कर सकूं। मगर किस्मत ने मुझे इतनी मोहलत ही नहीं दी कि मैं वापस जा सकता। मेरा सारा वक्त मेरे घर वालों की बेहिसी की नज़र हो गया था। आज भी जब वो वक्त याद करता हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मेरे सारे बहन भाई आज अपने अपने घरों में खुशो खुरम रह रहे थे और मेरी ज़िंदगी आज भी वहीं की वहीं थमी थी जहाँ से मैंने शुरू की थी।
मगर आज मेरे पास बहुत पैसा था जिसके सहारे मैं अपनी जिंदगी को बेहतरीन तौर पर जी सकता था। मेरे सारे बहन भाई आज तक मेरे पैसे पर ही पलते आए थे, जिसकी वजह से वो लोग कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं सके थे। मेरा छोटा भाई आज भी चंद हजार की नौकरी कर रहा था, जिससे वो बमुश्किल ही अपना खर्च उठा पा रहा था। बाकी पैसे मैं ही उसे भेजा करता था। मेरे बड़े बहनोई ने जो जबरदस्ती पैसे लेकर कारोबार किया था, वो भी कुछ ही अरसे बाद नुकसान में चला गया था, जिसकी वजह से वो आज तक उस कर्जे से नहीं निकल सके। वो भी अक्सर और बेशतर मुझसे कर्जे की रकम के लिए मुतालबा करते रहते थे और मैं उन्हें भी पैसे भेज दिया करता था, क्योंकि अपनी बहन का घर बर्बाद होते मैं भी नहीं देखना चाहता था। इसी वजह से हर बार उनके सामने झुक जाया करता था और जितने पैसों का वो मुतालबा करते थे उन्हें भेज देता था। उनकी देखा देखी दूसरी बहनों ने भी मुझसे फरमाइशें करनी शुरू कर दी थी। मैं किसी को मना नहीं कर सकता था, इसीलिए सबकी मांगें खामोशी से पूरी कर दिया करता। ये सब करके भी मेरे पास इतना था कि मैं अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकता, क्योंकि मैंने कभी भी मेहनत से जी नहीं चुराया था। मगर वो लोग आज भी वही थे जहां वो लोग 12 साल पहले थे, क्योंकि उन सब लोगों को मांगने की आदत पड़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो लोग अपनी ज़िंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर सके थे। उन्हें सब कुछ अपनी ज़िंदगी में बैठे बिठाए चाहिए था और वो लोग यही समझ रहे थे कि शायद सभी कुछ ज़िंदगी में बैठे बिठाए मिल जाएगा। मुझे यहाँ आए 12 साल गुजर चुके थे। इस अरसे में एक भी बार मैं लौटकर अपने घर नहीं गया था, मगर अब मेरे घर वालों को मेरी शादी की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि आज भी सारे घर के काम मेरी अम्मा को ही करने पड़ते थे, क्योंकि छोटे भाई की बीवी इस काबिल नहीं थी कि वो घर के कोई काम कर सके। उसने शादी के शुरू दिन से लेकर आज तक किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया था। इसी वजह से अब उन सब लोगों को मेरी शादी की फिक्र सताने लगी थी, क्योंकि सब लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि मैं अपनी बीवी को अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि मैं दुबई में एक ऐसे फ्लैट में रहता था जहां मेरे साथ मजीद 10 आदमी रहते थे। इसी वजह से अपनी बीवी को मैं अपने साथ नहीं रख सकता था और ये बात मेरे घर वाले बखूबी जानते थे। अम्मा ने मुझसे शादी की बात की तो मैं शादी करने के लिए राजी हो गया, क्योंकि अब मैं भी अकेले रहते रहते थक चुका था। मगर ये भी जानता था कि मैं शादी के बाद किसी और की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उसे अपने साथ नहीं रख सकता और ना ही खुद उसके साथ रह सकता था। अम्मा ने मेरे लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी थी। मैंने ये फैसला अम्मा के हाथ में ही थमा दिया था। इतने साल दयारे गैर में रहने के बावजूद भी मैंने किसी लड़की को पसंद नहीं किया था, क्योंकि हमेशा से ही मुझ पर पैसा कमाने की धुन छाई रहती थी। मैं अपना मुस्तकबिल रोशन करना चाहता था, इसी वजह से मैं कभी भी किसी की जानिब माइल नहीं हो सका। हालांकि यहाँ मुझे इतने मौके मिले थे जब मैं अपनी शराफत छोड़कर किसी और की जानिब माइल हो जाता, मगर मेहनत के सामने मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता था। अम्मा मुझे रोज़ ही किसी न किसी लड़की की तस्वीर लाजमी भेजती थी और मेरे कहने से पहले ही अम्मा का फ़ोन आ जाया करता था और वो मुझे कहती कि उन्होंने उस लड़की को इनकार कर दिया है कि वो मेरे लिए कोई चांद सी दुल्हन देख रही थी। इसी वजह से उन्हें कोई भी लड़की समझ नहीं आ रही थी और मैं बस ठंडी सांस भर कर रह जाता था। मेरी शादी के लिए हामी भरने की सबसे अहम वजह ये थी कि मैं इस बहाने ही अपने घर वापस जा सकता था। मैं सालों से अपने घर जाने के लिए तरस रहा था। आखिरकार अम्मा को मेरे लिए एक लड़की पसंद आ गई। अम्मा ने जब उसकी तस्वीर मुझे भेजी तो वो मुझे भी बहुत पसंद आई। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। मैंने फौरन ही हामी भर ली। यूं अम्मा ने मेरा रिश्ता उस लड़की के साथ तय कर दिया और 4 माह बाद की शादी की तारीख रख दी। मैंने वो 4 माह बहुत ही मुश्किल से गुजारे थे। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसी वक्त उड़कर अपने घर पहुंच जाऊं और वहां सबसे मुलाकात करूं। 12 साल एक बहुत ही लंबा अरसा था, मगर मैं ये भी जानता था किसी को भी उस वक्त से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सबको मेरी कमाई से मतलब था।
आखिरकार 4 माह जैसे तैसे करके गुजर गए और मैं अपने काम से छुट्टी लेकर अपने मुल्क, अपने घर आ गया। जिस वक्त मैंने अपने मुल्क की सरजमीन पर कदम रखा था, मेरा दिल सजदे में गिर पड़ा था। मैं जाने कितनी ही देर अपने मुल्क की मिट्टी पर माथा टेके रहा था। आंसू बार बार मेरी आंखों में उमड़ते चले आ रहे थे। इतने अरसे बाद अपने घर आकर एक अजीब से सुकून का एहसास हुआ था, मगर सबको मुझसे उस वक्त कोई सरोकार नहीं था, बल्कि सबको बस मेरे साथ आए उन बैग से मतलब था जिसमें उनकी फरमाइश की गई सारी चीजें मौजूद थीं। अपनों की इस कदर बेहिसी देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर मैं फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए सबसे मिल रहा था। मेरे आने के 1 हफ्ते बाद मेरी शादी की तकरीबात थी। उससे पहले मैं सबसे मिलना मिलाना चल रहा था। मेरे छोटे भाई की गोद में 3 बच्चे थे और अब मेरी शादी हो रही थी और फिर मेरी शादी भी हो गई। अम्मा अपनी बहू को बहुत चाव से ब्याह कर घर ले आई। मेरी शादी जिस लड़की से हुई थी वो लड़की बेइंतहा खूबसूरत थी और ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि खूबसूरती में भी अपनी मिसाल आप थी। मैं इतनी अच्छी जीवन साथी के मिल जाने पर हैरान था, क्योंकि मुझे लगा था कि अम्मा शायद किसी भी लड़की से मेरी शादी करवा देंगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं 2 माह की छुट्टियां लेकर आया था। इतने अरसे बाद अपने घर वालों के साथ रहकर मैं बहुत ज़्यादा खुश था, मगर जब मैं सोचता था कि मुझे वापस जाना पड़ेगा तो ये बात मेरा दिल बंद कर देती थी, क्योंकि वहाँ की ज़िंदगी मुझे किसी कैद व बंद से कम नहीं लगती थी। मैं यहाँ कुछ अर्सा अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि वापस जाकर एक मशीनी ज़िंदगी मेरी मुंतज़िर होगी। इसलिए हर पल मैं यहाँ खुलकर जी रहा था। मेरी शादी के बाद के दिन बहुत ही खूबसूरत और खुशगवार गुजर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। ये सब मेरे तसव्वुरात से बढ़कर था, या फिर मैंने एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब देखने छोड़ दिए थे, मगर अब ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। शादी के बाद मेरे ससुराल वाले हमारे घर आए और उन्होंने हम लोगों से कहा कि उनके ख़ानदान में रिवाज है कि शादी के बाद बेटी और दामाद कुछ दिन घर आकर रहते हैं। उनकी ये बात सुनकर मेरी अम्मा का मुंह बन गया और उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम लोगों के यहाँ ऐसी कोई भी रस्म नहीं होती। अम्मा के मुंह से ये बात सुनकर मेरी बीवी का चेहरा भी उतर गया और उसके माँ बाप भी खामोश हो गए। मैं अपनी बीवी को बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करना चाहता था। मैं जानता था कि वो मुझसे कुछ नहीं बोलेगी, मगर दिल में उसे इस बात का बुरा ज़रूर लगेगा। जब ही मैंने उन लोगों से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, अगर आप लोगों के घरों में ये रस्म है तो मैं आपके घर ज़रूर आऊँगा। मेरे मुंह से ये बात सुनकर अम्मा ने मेरी जानिब घूर कर देखा, मगर मैंने उस वक्त अम्मा को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। उस वक्त तो अम्मा चुप हो गईं, मगर फिर बाद में अम्मा के हाथों मेरी शामत आ गई। वो मुझसे कह रही थी कि शादी होते ही बीवी के इशारों पर चलने लगे हो। मैं खामोशी से अम्मा की सारी लान तान सुनता रहा था। अगले दिन मैं अपनी बीवी के साथ उसके मेके जा चुका था। वहाँ मेरा बहुत अच्छे से इस्तकबाल किया गया। बहुत ही इज्जत व एहतराम से पेश आ रहे थे। मेरे आने से पहले ही हमारा कमरा तैयार कर दिया गया था। मेरे ससुराल वाले अच्छे खाते पीते लोग थे, इसलिए मुझे यहाँ किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मैं अपनी बीवी को लेकर शाम के वक्त उनके घर पहुँचा था। उस वजह से शाम की चाय पीने के बाद हम लोग कुछ देर आराम करने अपने कमरे में चले गए। अभी मुझे कमरे में गए कुछ ही देर गुजरी थी। मेरी बीवी तो लेटते ही सो गई थी, क्योंकि हम काफ़ी लंबा सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचे थे। इसी वजह से वो बहुत थकी हुई थी। वो अपने बिस्तर पर लेटते ही सो गई, मगर मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मैं अपने कमरे की बालकनी में आकर बैठ गया। कमरे की बालकनी से बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता था। सूरज मगरिब की जानिब रवां दवां था। माहौल में हल्का हल्का अंधेरा छा रहा था, जिसकी वजह से माहौल में छाए तलस्सुम में इजाफा होता गया।
मैं कुछ देर के लिए उस नज़ारे में मुकम्मल तौर पर खो गया, मगर यकदम ही मेरे कानों में किसी के बुरी तरह से चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैंने परेशान होकर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, मगर मुझे कोई भी ऐसा दिखाई नहीं दिया जो इतनी बुरी तरह से चीख रहा हो। मैंने उन आवाज़ों पर गौर किया तो मालूम हुआ कि ये आवाज़ें तो घर के अंदर से आ रही हैं, मगर अभी मुझे यहाँ आए कुछ देर ही गुजरी थी। मैं यूं मुंह उठाकर किसी के घर भी कोने में नहीं जा सकता था। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ा उन आवाज़ों को सुनता रहा। ये आवाज़ें कभी बहुत तेज़ हो जाती तो कभी हल्की हो जाती। मैं अब बुरी तरह से परेशान हो गया था। मैंने अपनी बीवी को जगाने का सोचा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि घर में लाजमी कुछ हो रहा है या कोई किसी मुसीबत में है। मैंने अपनी बीवी को जगाया और उससे कहा कि ये घर में कैसी आवाज़ें आ रही हैं, कौन चीख रहा है। वो नींद में उठी और कसलमंदी से मेरी जानिब देखा, मगर उसके चेहरे पर मुकम्मल तौर पर सुकून था। मेरी बात सुनकर भी वो परेशान नहीं हुई थी। वो उस वक्त गहरी नींद से उठी थी। उसने मुझसे कहा, परेशान ना हो, इन आवाज़ों से कुछ नहीं होता। मैं जो समझ रहा था कि मेरी बात सुनकर वो बुरी तरह परेशान हो जाएगी, मगर मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल मुतमईन थी। उसके इत्मीनान में रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ा था, बल्कि वो दोबारा से आंखें बंद करके सो गई थी। मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। कोई घर में इतनी बुरी तरह से चीख रहा था, मगर इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो तो ऐसे इत्मीनान से सो रही थी जैसे ये सब उसके लिए रोज का मामूल हो। फिर मुझे भी कमरे से बाहर जाना मुनासिब ना लगा और मैं वहीं कमरे में टहलने लगा, मगर मेरा जहन बदस्तूर उलझा हुआ था। मगर अब भी मैं थक गया था, इसलिए मैं भी बिस्तर पर लेट गया। कब मैं नींद की वादियों में उतर गया, मुझे कुछ भी पता नहीं चल सका। रात को मेरी आंख खुली तो मेरी बीवी रात के खाने के लिए मुझे जगा रही थी। मैं हाथ मुंह धोकर कमरे से बाहर आया तो सब बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं भी उन लोगों के साथ खाना खाने बैठ गया और उनके साथ खाने में शरीक हो गया। खाने के दौरान सब लोग हल्की फुल्की गुफ्तगू भी कर रहे थे। मेरी बीवी वक्फे वक्फे से मेरी प्लेट में कुछ ना कुछ डाल रही थी। वहाँ सब लोग ही बड़े मिलनसार थे और मेरा बहुत ही ख्याल रख रहे थे। मैं भी उन लोगों के दरमियान बहुत खुश था। मैं कुछ वक्त के लिए अपनी परेशानी को भूल ही गया था कि अभी मुझे वापस भी जाना था। मेरी बीवी भी यहाँ आकर बहुत खुश थी। उसकी खुशी उसके चेहरे से जाहिर हो रही थी। मैंने उस वक्त दिल में सोचा था कि मैं उसे सारी खुशियाँ दूंगा। जितना मेरे बस में हो सकेगा मैं उसे खुश रखने की कोशिश करूंगा। यही सोचकर मैं मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो गया था। वहाँ सब बैठे खुश गपियों में मसरूफ थे। इसी असना में अचानक से उन्हीं चीखों की आवाज़ सुनाई देने लगी, मगर अब भी वहाँ सब लोग अपनी बातों में मसरूफ थे। मैं हैरान होकर सबकी जानिब देख रहा था। किसी को भी उन आवाज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये आवाज़ें उन लोगों के लिए रोज़ का मामूल हों। मेरी सास खाना छोड़कर सामने बने एक कमरे की जानिब गई। मेरी निगाहों ने भी उनका ताक़ुब किया। ये आवाज़ें उसी कमरे से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई लड़की बुरी तरह से चीख रही हो। मेरी सास जब अंदर कमरे में गई तो उस लड़की की चीखने की आवाज़ों में तेज़ी आ गई। मेरी बीवी ने अपने भाई से कहा कि लगता है आज इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जब ही मुसलसल चीखे जा रही है। उसके भाई ने जवाबन उससे कहा कि ये कई दिन से ऐसा ही कर रही है, पता नहीं इसे क्या हो गया है, इतना तो ये बिल्कुल नहीं चीखती। जिस कमरे में मेरी सास गई थी उसी कमरे में से एक लड़की बाहर भागती हुई आई। सब उसे देखकर खाना छोड़कर अपनी जगह खड़े हो गए। वो अपने बचाव के लिए इधर उधर भाग रही थी। सभी उसे प्यार से समझाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो किसी की भी बात नहीं सुन रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी। मैं हैरानी से ये सारा मंजर देख रहा था। मैंने अपनी बीवी की जानिब भी देखा। वो परेशानी से सामने खड़ी लड़की को देख रही थी। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि ये कौन है। मेरी बीवी ने हैरानी से मेरी जानिब देखा और मुझसे कहने लगी,
आप नहीं जानते क्या? मैंने नफी में सर हिला दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने मुझसे कहा, ये मेरी जुड़वा बहन है और इसकी जहनी हालत खराब है। मैं काफी देर तक गुमसुम सा उस लड़की को देखता रहा। गौर करने पर मालूम हुआ कि वो हूबहू मेरी बीवी की हमशक्ल थी। उसकी जहनी हालत की खराबी की वजह से उसकी खूबसूरती को ग्रहण लगा हुआ था, वरना वो भी मेरी बीवी जितनी ही खूबसूरत थी। मैं खामोशी से ये सारा मंजर देख रहा था। आखिरकार मेरी सास ने बड़ी मुश्किल से मेरी साली को पकड़ा था, क्योंकि वो घर में किसी के भी पास नहीं आती थी। सिर्फ मेरी सास ही उसे काबू में कर सकती थी। मेरी सास उसे पकड़कर अपने साथ कमरे में ले गई और उसे दोबारा से रस्सियों से बांध दिया। ये सब देखकर मेरा दिल बुरी तरह से दुखा। वो अब भी बुरी तरह से चीख रही थी और रोते हुए कह रही थी कि उसके हाथ खोल दे, उसे दर्द हो रहा है। उसकी ये हालत देखकर मुझे उसके ऊपर बहुत तरस आया। मैं पहली बार किसी ऐसी लड़की को देख रहा था जिसका ज़हनी तवाज़ुन खराब था। मेरा खाने से दिल उठ गया। मैंने अपनी बीवी से कहा कि वो इतनी बुरी तरह से चीख रही है, उसे खोल देना चाहिए, उसे यूं रस्सियों से बांधकर नहीं रखना चाहिए। मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि मजबूरी है, जब भी उसे रस्सियों से बांध कर रखते हैं। मुझे उस वक्त उसकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई, मगर मैं अपनी बीवी से कहने लगा, ये गलत है, इसे यूं बांध कर नहीं रखना चाहिए, वो भी हमारी तरह इंसान है। मेरी सास हम दोनों की सारी बातें सुन रही थी। मेरी सास ने मुझे मुखातिब करके कहा, इसे बांध कर रखना हमारी मजबूरी है, वरना तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उनके बेटे ने आगे बढ़कर उन्हें अपने कांधों से लगा लिया। वो रोने के लिए बेताब थी। जाहिर है जवान बेटी की ये हालत थी, वो नहीं देख सकती थी। जब भी उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, मैं वहां से अपने कमरे में चला आया। कुछ देर बाद मेरी बीवी कमरे में आई तो मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी बहन शुरू से ही ऐसी थी? मेरी बात सुनकर उसने एक ठंडी सांस भरकर मेरी जानिब देखा और फिर मुझसे कहने लगी, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी। 5 साल पहले ये बिल्कुल ठीक थी, मगर अचानक ही ये खामोश खामोश सी रहने लगी। हम दोनों बहनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम लोग सारी बातें एक दोस्त की तरह बताया करती थी, मगर ये अब कोई भी बात मुझे नहीं बताती थी, बल्कि वो घर में किसी से भी बात नहीं करती थी। उसके बदलते रवैये को घर में सभी लोग देख रहे थे, क्योंकि मेरी बहन हमेशा से ही बहुत जिंदा दिल थी, मगर अब हर चीज़ से उसका दिल उचाट हो चुका था। अम्मी ने कई बार उससे वजह पूछी थी कि वो ऐसी क्यों हो गई है, मगर वो किसी को भी कुछ नहीं बताती थी, बस अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। यहाँ तक कि उसने मुझसे भी बात करनी छोड़ दी थी। उन दिनों हम दोनों ने कॉलेज में दाखिला लिया था। जब हमने कॉलेज में दाखिला लिया, जब तक सब कुछ ठीक था, मगर कॉलेज में दाखिला लेने के 1 माह बाद उसका रवैया सबके साथ मुकम्मल तौर पर बदल गया था। मैं रोज़ ही कॉलेज जाती थी, मगर वो कॉलेज जाने में भी बहाने करने लगी थी। अम्मी चाहती थी कि हम दोनों बहनें पढ़ लिख जाएं और आला तालीम हासिल करें, मगर मेरी बहन पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। मगर वक्त के साथ साथ ये मज़ीद ज़िद्दी और खुदसर होती जा रही थी। घर में सबसे बदतमीज़ी करना उसने अपना मामूल बना लिया था। फिर एक दिन अम्मी के मजबूर करने पर बहुत मुश्किल से मेरे साथ कॉलेज गई। कॉलेज में तो ठीक रही, मगर फिर घर आने के बाद ये बेहोश हो गई। घर में सब लोग इसकी हालत देखकर बहुत परेशान हो गए थे, इसीलिए उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले गए। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि मेरी बहन का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। उसने किसी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन ली थी, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। वो जब होश में आई और उसे ज़बरदस्ती पूछा तो मालूम हुआ कि हमारे कॉलेज के सर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई थी। मगर उसकी हालत सुधरने की बजाय दिन ब दिन बिगड़ती ही चली जा रही थी। कॉलेज में शिकायत करके उस टीचर को कॉलेज से निकलवा दिया था, मगर मेरी बहन की जहनी हालत ठीक नहीं हो सकी।
बल्कि मज़ीद ख़राब हो गई और आज उसका ये हाल हो गया है। डॉक्टर का कहना है कि मेरी बहन ने ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी ली थी, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई है। उसका इलाज काफ़ी सालों से चल रहा है। कभी ये बिल्कुल ठीक हो जाती है तो कभी इसकी हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि इसे रस्सियों से बांध कर रखना पड़ता है। ये कहकर मेरी बीवी भी रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, वो मेरी जुड़वा बहन है। उसकी ये हालत देखकर मेरा दिल कटता है, मगर मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। वो ज़ारों कतार रो रही थी। ये सब सुनकर मैं भी अफसरदा हो गया था, मगर मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए खामोश रहा। उस रात को मेरी बीवी सो गई, मगर शाम में सोने की वजह से नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे अपनी बेचैनी की वजह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैं अपनी जगह से उठकर बैठ गया। कमरे में मुझे बहुत घुटन हो रही थी। मैं कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल आया। कमरे से बाहर निकलकर मुझे कुछ राहत का एहसास हुआ। फिर मुझे उसकी चीखें सुनाई दी। उसकी आवाज़ें सुनकर मेरे दिल में रहम जाग गया। मैं उसके कमरे के जानिब बढ़ा तो उसे रस्सियों से बांधा हुआ था। मैंने सोचा कि मैं इसकी रस्सियां खोल देता हूँ ताकि बेचारी को कुछ तो सुकून मिले। मैं चुपके से उसके कमरे में गया और उसे रस्सियों से आज़ाद कर दिया और वापस आकर कमरे में सो गया। मैं समझ रहा था कि मैंने उसके साथ भलाई की है। ये लोग उसे रस्सियों से बांधकर उसके साथ जुल्म कर रहे हैं। इसी वजह से मैं मुकम्मल तौर पर मुतमईन होकर सो गया। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर चुका हूँ। बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई थी। अभी मुझे सोए कुछ ही देर गुजरी थी कि यकदम घर में शोर बरपा हो गया और मेरी आंख दोबारा से खुल गई। शोर की आवाज़ सुनकर मेरी बीवी भी जाग गई थी। वो भी कमरे से बाहर निकली। मैं भी उसके साथ ही कमरे से बाहर आ गया और ना समझी से सबको देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये घर में क्या हो गया है। जब मुझे पता चला तो मेरे सर पर कयामत टूट पड़ी। मेरी साली, जिसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था, वो घर से लापता थी। मेरी सास सबसे गुस्से में पूछ रही थी कि किसने उसे रस्सियों से आज़ाद किया है, मगर किसी को भी इस मामले का इल्म नहीं था, इसीलिए सब लाइल्मी का इजहार कर रहे थे। मैं अपनी जगह खामोश खड़ा था। अगर मैं कुछ बोलता तो सबके सामने मेरी इज्जत गिर जाती। इसी असना में दरवाजे पर बेल हुई। मेरे साले ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो कई आदमी मेरी साली को लिए खड़े थे। वो उनके हाथों से निकलने की कोशिश कर रही थी। वो लोग मोहल्ले वाले थे और उस लड़की को पहचान गए थे जब भी उसको वापस घर ले आए थे। मैंने सुकून की सांस ली कि वो सही सलामत घर वापस आ गई थी, मगर मैं अपनी उस गलती पर बहुत शर्मिंदा था। मेरी छोटी सी गलती से कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। सच शुक्र था कि वो सही सलामत अपने घर वापस आ गई थी। अगले दिन मैं ससुराल से लौट आया था। 2 माह मैं अपने घर रहा और फिर वापस चला गया। चंद साल मैंने मज़ीद वहाँ पर मेहनत की और फिर अपनी बीवी को भी वहीं बुला लिया। मैंने वहाँ पर अपना फ्लैट ख़रीद लिया था। अब मेरे घर वाले मुझ पर जोर देते थे कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर वापस आ जाऊं, मगर अब मैं वहाँ से वापस नहीं जाना चाहता था। इसी वजह से मैं दुबई में बस गया था। कुछ अरसे बाद मैंने अपनी साली को भी यहाँ बुला लिया था और उसका एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाने लगा। कुछ ही अरसे में वो बिल्कुल ठीक हो गई और मैंने उसकी यहीं शादी कर दी। आज वो भी अपने घर में बहुत खुश है और मैं भी अपनी ज़िंदगी में मुतमईन हूँ।